नमस्कार, आप देख रहे हैं महानगर समाचार। मैं हूं आपके साथ श्वेता। तो चलिए रुक करते हैं आज की बड़ी और प्रमुख खबर पर। दिल्ली हाई कोर्ट के जज के घर आग से खुला बड़ा राज, कमरे में मिला बेहिसाब कैश। सीजेआई ने तुरंत लिया सख्त फैसला। दिल्ली हाई कोर्ट की न्यायाधीश यशवंत वर्मा के सरकारी आवास पर लगी आग के बाद भारी मात्रा में नकदी बरामद होने से न्यायपालिका में हड़कंप मच गया है। यह मामला इतना गंभीर हो गया है कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई संजीव खन्ना के नेतृत्व वाले कॉलेजियम को उन्हें तत्काल स्थानांतरित करने का फैसला लेना पड़ा। इस घटनाक्रम ने न्यायिक गलियारों में हलचल मचा दी है। कैसे हुआ मामला उजागर? जब आग लगी उस समय न्यायमूर्ति वर्मा शहर से बाहर थे। उनके परिवार के सदस्यों ने फायर ब्रिगेड और पुलिस को सूचना दी। दमकल कर्मियों ने आग बुझाने के दौरान एक कमरे में भारी मात्रा में नकदी बरामद की, जिसके बाद इस मामले की आधिकारिक एंट्री दर्ज की गई। स्थानीय पुलिस ने वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित किया, जिसके बाद यह खबर सरकार के उच्च अधिकारियों तक पहुंची और अंततः सीजेआई को जानकारी दी गई। सूचना मिलते ही सीजेआई संजीव खन्ना ने तुरंत सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की बैठक बुलाई। कॉलेजियम ने सर्वसम्मति से न्यायमूर्ति वर्मा को दिल्ली हाई कोर्ट के उनके मूल हाई कोर्ट इलाहाबाद स्थानांतरित करने का निर्णय लिया। न्यायमूर्ति वर्मा को अक्टूबर 2021 में इलाहाबाद से दिल्ली हाई कोर्ट में भेजा गया था। 50 members of parliament have submitted a notice to you regarding certain remarks that were made by a judge of the Allahabad High Court. You yourself have repeatedly called into question the urgency for judicial accountability. You have in fact directed the leader of the house on this issue. Sir, I request that you please make some observations on this and give necessary directions to the government to come up with a proposal for increasing judicial accountability. देखिए, बहुत गंभीर विषय है। इसको सरकार को विशेष रूप से संज्ञान में लेना चाहिए और कुछ ना कुछ इसमें कार्रवाई जरूर हो। केवल ये तो मैं भी मान रहा हूँ कि केवल ट्रांसफर से इसमें उचित नहीं है। और जो जिस तरह का पता चल रहा है, जो नोट मिले हैं, तो एक बहुत गंभीर भ्रष्टाचार का विषय है। तो इस पे गंभीरता से कोई ना कोई एक्शन, कड़ी कार्रवाई हो। Well, first of all, I am not aware of any of the facts. If the Supreme Court Collegium is seized of the matter, the Supreme Court Collegium will take action on it if they wish to take action on it. I am not aware of any of this. I have also read it in the newspaper, so I don't want to comment in any way one way or the other. But certainly the issue of corruption within the judiciary is a very serious issue, and this is not something that has been articulated by senior counsel and lawyers in this country for the first time. It's been going on for years, and public statements have been made. So I think that it's time for the Supreme Court to start looking at issues of how the appointment process should take place. That it should be more transparent, appointments should be more carefully done. There's another judge of the Allahabad High Court, as you know, against whom the collegium called him for an explanation, and he chose not to respond to their direction that he should apologize. This is what I've heard. I mean, I'm not myself privy to any of this. And thereafter the Supreme Court Collegium has kept quiet. Now that also sends a wrong signal, if these facts are correct. If these facts are not correct, then of course my statement is also inaccurate. But it sends a wrong signal. That means that a judge can say what he wants to say, and conduct himself in whatever manner he wants to conduct himself, and the Collegium will remain silent and not take any proactive action. That also sends a wrong signal to the public at large, because corruption is a serious issue, not just within the judiciary, but in society at large. Corruption is a serious issue amongst public functionaries, and corruption has, despite whatever our dear Prime Minister has said, has increased. And आपको याद होगा कि जब ये लोकपाल की एजिटेशन हुई थी, तो मतलब कि सभी राजनीतिक दल कांग्रेस पे आरोप लगाते थे, और फिर ये लोकपाल की लेजिस्लेशन लाए भी, और आज तक कुछ हुआ? मतलब कि सरकार गिरा दी गई और उसके बाद इन्होंने कुछ नहीं किया। ना केजरीवाल जी ने कुछ किया, ना प्रधानमंत्री जी ने कुछ किया। एक लोकपाल को बैठा दिया, और वो तो आप देख ही रहे हो क्या करते हैं। तो ऑब्वियसली ये मामले बड़े सीरियस मामले हैं, और सिस्टम्स जब तक इन प्लेस नहीं होंगे तब तक सुझाव नहीं आने वाला।
सर एक इसमें सवाल ये है कि कुछ जो सीनियर वकील हैं और दूसरे अधिकारी हैं उनका कहना है कि केवल ट्रांसफर करना सफिशिएंट नहीं है, एक इन हाउस इंक्वायरी सीजीआई को। देखिए ऐसा मैंने आपको पहले ही बता दिया जी कि मुझे कोई जानकारी नहीं है इस मामले में, तो मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। हाँ, जो जानकारी मुझे मिली, जो मैंने पढ़ी है, अखबार में पढ़ा है लखनऊ के हाईकोर्ट जज के बारे में, उसके बारे में मैंने टिप्पणी कर दी है। अगर वो बात सही है तो, क्योंकि आजकल ये है ना कि भाई रिपोर्टिंग भी कई बात एक्यूरेट नहीं होती, लेकिन इंडियन एक्सप्रेस तो ऐसा एक न्यूज़पेपर है जहां रिपोर्टिंग तो ठीक ठाक ही हो रही। खबर के अंत में खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही बड़ी किसी खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए महानगर समाचार।